Greetings, dear students. Today we are going to talk about the use of combinations in probability. So, in probability, till now we have understood finding out the probability using the classical definition of probability. So, according to the classical definition, the probability or the chance of the occurrence of an event is equal to the total number of favorable outcomes divided by the total number of outcomes, right? तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं उसको हम डिनोमिनेटर में लेते हैं और जितनी हमारे लिए फेवरेबल संभावनाएं हैं द इवेंट्स दैट आर फेवरेबल मीन्स जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो फेवरेबल इवेंट है उसको हम न्यूमरेटर में लेते हैं एंड वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी बाय टेकिंग दिस fraction of the total number of favorable outcomes and total number of outcomes. So now we will understand the use of combinations in probability. Why the use of combinations? बिकॉज जब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो अगर हमारा एक्सपेरिमेंट के इवेंट्स जो आने वाले हैं वो लिमिटेड हैं तब तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं कि कितने आउटकम होंगे. जैसे आपने एक सिक्का उछाला तो आपको पता है कि 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. सो इट्स वेरी इजी टू काउंट. एंड इफ़ यू जस्ट रोल अ डाई यू नो कि उस पर 6 ही नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 तो भी आपके लिए इजी होता है काउंट करना कि देर आर 6 पॉसिबिलिटीज़. लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दें इस सिचुएशन को जहाँ पर कि अगर आपको आउटकम्स एक एक लिख कर आपको टाइम लगे जानने में, जैसे आप एक डाई रोल करने की बजाय आप 3 डाइस रोल कर रहे हैं एक साथ तो उसमें तीनों पे हर एक पे अलग अलग नंबर आएगा. सो यू विल हैव 6 into 6 into 6, राइट. सो दैट विल बी द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, राइट. तो उसके लिए आपको पहले सारे आउटकम्स लिखने पड़ेंगे. दैट बिकम्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड अ वेरी टीडियस जॉब टू कैलकुलेट द पॉसिबल आउटकम्स. सो टू शॉर्टन दिस प्रोसेस, इस लंबे प्रोसेस को छोटा करने के लिए या हमारे इस काम को आसान करने के लिए, कौन से काम को, ये फाइंड आउट करना कि कितने आउटकम्स हो सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है कि हम कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट मैथ्स में बहुत पॉपुलर है जहाँ पर कि एक गिवन सेट ऑफ थिंग्स में से हमें जब ये फाइंड आउट करना होता है कि हम उसमें से कितने ग्रुप्स बना सकते हैं, what are the different types of groups that can be made out of a given set of things, we make the use of combination. तो वही combination का use हम probability में भी कर सकते हैं जब हमें ये find out करना है कि हम कितने तरीके से हम एक चीज़ के outcome निकाल सकते हैं, right. So first we will understand what is the formula of combination and then how to apply or use that formula while calculating the probability. So what is the formula of combination? That we have C. So we denote C as combination. We write C, and as a superscript we have N, and as a subscript we have R, right. So we have NCR. This is the formula of combination. So C here refers to combination, N refers to the total number of things that we have in the set, and R refers to the group that we want to make, how many we want to include in one group. ठीक है. तो N मतलब टोटल जितनी भी हमारे पास थिंग्स अवेलेबल है इन द सेट, और R मतलब एक ग्रुप में हम कितने चाहते हैं. तो हम ये जानना चाहते हैं कि टोटल N में से हम R के कितने ग्रुप्स बना सकते हैं, राइट. So we can also write it in terms of an example. Suppose there are 10 things that we have 10C3, right. So 10C3 means out of a total of 10 how many groups of 3 we can make, right. So this is the rule of writing the formula for combination. So when we write this, how to find out, now that we have written 10C3, how are we going to find out that how many actually we can make, or what is the answer to this, right. So for this we require the rule of factorial, right. So for that we have N factorial divided by N minus R factorial into
So this is the solution to this NCR. So for NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Now what is factorial? So if we just take this example that we have written here, 10 factorial means 10, and we just put this symbol of factorial here, divided by n minus r. N here is 10 and r is 3. So 10 minus 3 factorial and r is 3. So again 3 factorial. So this is how we are going to open up this formula. इसको ऐसे open करके लिखेंगे. अब factorial का क्या मतलब होता है? We just have to multiply all the numbers in reverse order. So if we have 10 factorial, तो हम क्या लिखेंगे? 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1, right? So this is how we open up this. So we just write in reverse order and we multiply all the numbers. You must have done factorial in maths, but here we are not going into the meaning and details of factorial, but we know that this is the finally how we write the factorial. We just write all the numbers in reverse order and we multiply all the numbers, right? So we have written in the numerator 10 से लेकर 1 तक आप रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते चले गए. Then 10 minus 3 factorial is what? 7 factorial. So we have 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, right? And then again we have 3 factorial. So we have 3 into 2 into 1. Is it okay? So अब देखिए ये अगेन हमारा जो जब हम इसको ओपन करते हैं, इट अगेन बिकम्स अ लॉन्ग एक्सरसाइज टू कैलकुलेट टू मल्टीप्लाई ऑल दीज वैल्यूज. सो इफ वी जस्ट लुक एट दिस फॉर्मूला केयरफुली, वी कैन कैंसल आउट सम वैल्यूज. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बहुत सारी कॉमन वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलेंगी. वाई? बिकॉज अब देखिए जो न्यूमरेटर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, जो 10 फैक्टोरियल था, 10 इंटू 9 इंटू 8 जब आपने लिखा तो यहाँ तक अगर हम छोड़ें इसको हम 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट एज मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 फैक्टोरियल क्या होता है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड दिस इज वॉट वी हैव हियर. तो ये जो पूरा बाकी का आगे की वैल्यू है दैट इज 7 फैक्टोरियल. तो हमने 7 पे ही क्यों रोका इसको? क्योंकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें 7 फैक्टोरियल है एज इट इज. 10 minus 3 is 7 factorial into 3 factorial, right? तो अब ये जो 7 फैक्टोरियल है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है. 7 फैक्टोरियल को आपको ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप उसे ओपन करेंगे तो न्यूमरेटर में भी वही वैल्यू आएगी और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 7 फैक्टोरियल है वही वैल्यू आएगी. सो डायरेक्टली हम सीधा 7 फैक्टोरियल लिख के और नीचे भी 7 फैक्टोरियल लिख के उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो वी आर लेफ्ट विद व्हाट? 10 into 9 into 8 divided by 3 into 2 into 1, राइट? तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है प्रोसेस. तो अब हम देखेंगे कि जब भी हमारे पास ये फॉर्मूला होता है तो हम जो न्यूमरेटर है उसमें वहीं तक उसको ओपन करते हैं जहाँ तक हमारा डिनोमिनेटर का फैक्टोरियल आता है. जैसे इस एग्जाम्पल में हमारा डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल था 7 फैक्टोरियल, तो 7 जो है आपका फैक्टोरियल एज इट इज रहने देंगे हम न्यूमरेटर में ताकि वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए. तो 10 इंटू 9 इंटू 8 पे हमने छोड़ दिया और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 7 फैक्टोरियल से. सो ये जो 7 फैक्टोरियल है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद आर फैक्टोरियल इन द डिनोमिनेटर, और ऊपर हमारी वो 3 वैल्यूज रह जाएंगी 10 इंटू 9 इंटू 8. सो इस 3 फैक्टोरियल को हमने ओपन कर दिया 3 into 2 into 1, right? So now we can cancel out these values. We can easily cancel them out. 3 3s are 9, right? So 4 3s are 12 and into 10. So now we know that there are 120 ways of doing this. So we have found out the answer. अब सोचिए इसी चीज़ को अगर आपको लिखना होता तो आपको 120 आउटकम्स लिखने पड़ते कि अगर हम 10 में से 3 के ग्रुप बनाना चाहते हैं तो हमारे पास 120 पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो ये हमें क्योंकि
प्रोबेबिलिटी में चाहिए होता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो हमें कैलकुलेट करना होता है, लेकिन वो पूरा एक एक लिख के कैलकुलेट करने की बजाय नाउ वी हैव अ शॉर्टकट दैट वी कैन मेक द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन. So by using the combination we have found out that there are 120 ways of doing this thing. So now when we have any question of probability जहाँ पर कि हमारे outcome simple नहीं है, वहाँ पे हम combination का use करके we can find out that in how many ways we can do that particular thing, या एक given set of things में से हम कितने तरीके से groups बना सकते हैं, right? तो set of things n है और कितने का ग्रुप बनाना है वो r है. सो वी विल पुट द वैल्यूज हियर n c r, जिसमें कि हम उसे ओपन अप करके n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, राइट. सो न्यूमरेटर में जब हम उसे ओपन करेंगे तो आपका जो फैक्टोरियल की वैल्यू है वो पूरा ज़्यादा आपको उसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो n माइनस आर फैक्टोरियल है वो न्यूमरेटर में भी आएगा और डिनोमिनेटर में भी, उसको आप एज इट इज़ कैंसिल कर सकते हैं. तो आपके पास न्यूमरेटर में 3 वैल्यूज़ बचेंगी और डिनोमिनेटर में भी 3 ही वैल्यूज़ बचेंगी. तो अब आपका जितने का भी आपको ग्रुप बनाना होता है, जो भी आपकी r की वैल्यू होती है उतनी ही आपकी डिनोमिनेटर में आएंगी वैल्यूज़ और उतनी ही आपकी न्यूमरेटर में. तो ये भी आप इजीली याद रख सकते हैं कि जो r की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे r3 था, तो न्यूमरेटर में भी आपके पास 3 ही वैल्यूज बचेंगी और डिनोमिनेटर में भी. सो यू कैन सिंपली से 10 इंटू 9 इंटू 8, तो आपको 3 फैक्टर्स तक ही उसे ओपन करना है और बाकी के 7 फैक्टोरियल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले कैंसिल हो जाएंगे और नीचे भी आपका 3 फैक्टोरियल बचेगा, राइट. सो यू विल हैव इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी आपकी डिनोमिनेटर में है उतनी ही आपकी न्यूमरेटर में होंगी, एंड यू कैन कैंसिल आउट एंड फाइंड आउट द number of ways, right. So after understanding this meaning of combination, now we will actually do some practical questions related to probability where we will make use of the combinations that I will just present to you in the next video. Thank you.